let's start a new chapter. This is chapter 13, and chapter 13 in the slides start chapter 12 in the book. Most probably the last chapter before this course is finished. Okay. In case we get time, so we might start another one. We might finish the previous one. Variable costing का अगर आपको याद हो हमने एक portion छोड़ा हुआ है. ठीक है? एक छोटा सा portion है. तो शायद हम लोग वो कर लें. ठीक है? Otherwise, this is the end of your course. Okay. So let's start here. Decision making. G. What is decision making? Decision. क्या होता है? फैसला. लेकिन what is decision making? When do you make a decision? जब डेटा हो. अच्छा ठीक है, लेकिन जब जरूरी है जब ऑप्शंस. If you don't have any option और एक ही काम करना है तो फिर तो there is no decision. ठीक है? Okay. So that means decision is made when you have an option. अब जब ऑप्शन हो और आपने कोई डिसीजन लेना है तो आप कौन सा डेटा लेंगे, कौन सा डेटा देखेंगे, ठीक है, या कौन सी कॉस्ट देखेंगे या कौन सा बेनिफिट देखेंगे. ठीक, आप लोग वो कॉस्ट या बेनिफिट देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं which is called as relevant. ठीक है, relevant कॉस्ट लेंगे, irrelevant कॉस्ट नहीं लेंगे. अब आप कहेंगे सर relevant कॉस्ट का तो मतलब ये है कि जो उससे रिलेटेड हो या उसमें इस्तेमाल हो. बट देन व्हाट इज relevant कॉस्ट? relevant कॉस्ट क्या होगी? हम तो कह रहे हैं कि relevant कॉस्ट लेंगे ना, irrelevant नहीं लेंगे. जो irrelevant to the decision है वो नहीं लेंगे. लेकिन relevant का क्या मतलब है? relevant का मतलब ये है कि if I have two options, let's say if I have two options, दो से ज्यादा भी हो सकती है. Options can be more than two, okay? But at least two, कम से कम दो हो. Let's say the cost for the first option is आप सुबह आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, ठीक है, and you have an option. You can go by taxi or you can take the BRT. ठीक है, दो ऑप्शन. अब अगर टैक्सी आपसे चार्ज कर रही है 100 और BRT का टिकट इज ₹60. So then there is a difference between cost. There is a difference between cost ना. तो जब भी cost differ करे between alternatives, it is called as relevant cost. लेकिन जब भी cost same हो, let's say this is also 100, ठीक है, ये भी 100 और ये भी 100. Now can you decide on the basis of this cost? Yes. Can you decide? इज़्ज़तुल्लाह, अगर मैं आपसे कहूं कि यार टैक्सी में जाएं या BRT में जाएं, दोनों का किराया 100 रुपए है, तो क्या आप इस कॉस्ट की बेसिस पे, किराए की बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. फिर आप ये सोचेंगे कि किराया सेम है. नाउ लेट्स लुक एट अदर ऑप्शंस, अदर क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल ईज. BRT में रश होता है, जगह नहीं मिलती, धक्का करने पड़ते हैं, स्लो भी है. टैक्सी डायरेक्ट मुझे लेके चली जाएगी, ठीक है, और टैक्सी बस में रुकूंगा, अकेला बैठाऊंगा, खुला बैठ जाऊंगा बीच में और आराम से AC भी लगा लूंगा. ईज. सो दैट मींस यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉस्ट. So when cost is same, it is irrelevant. When cost differs between options, it is relevant. A relevant cost is a cost that differs between alternatives. जब भी आपके पास alternatives हों और उनकी cost different हो, तो फिर वो cost relevant cost होगी. Got this idea, class? Yes, sir. Relevant cost idea clear? Yes, sir. Okay. So that was relevant cost. अब जाते हैं identifying relevant cost. An avoidable cost can be eliminated. एक cost है which you can avoid. ठीक है? मैं एक काम कर रहा हूं, अगर मैं ये काम ना करूं तो ये cost नहीं हो. ठीक है? So that means that cost can be eliminated in whole or in part by choosing one alternative over another. या तो पूरी की पूरी avoidable हो या उसका कुछ हिस्सा avoidable हो. When you choose between two alternatives. Okay. दोबारा इस एग्जांपल में जाते हैं. 100 is for taxi and 60 is for BRT. If you go by BRT, which cost can you avoid? आप कितनी कॉस्ट अवॉइड कर सकते हैं? 40. अगर मैं टैक्सी में जाऊं कॉस्ट कितनी लगेगी? 100 रुपए. अगर मैं BRT में जाऊं कॉस्ट कितनी लगेगी? 60. 40 मैंने अवॉइड कर दी ना. सो दैट इज अवॉइडेबल कॉस्ट. अब क्या 100 की 100 फुल अवॉइड होगी?
नहीं, इसका पार्ट अवॉइड हुआ ना 40, इसका पार्ट अवॉइड हुआ 40. So unavoidable cost can be eliminated in whole or in part, in whole or in part, by choosing one alternative over another. I chose this alternative over this one. ठीक है? So avoidable costs are relevant cost. अब once again जो avoidable cost होती है वो relevant cost होती है, unavoidable costs are irrelevant cost. एक cost है जो कि दोनों केसेस में हो. फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ये थी आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, ये आ गई आपकी लंच की कॉस्ट. आप घर से निकलते हैं, आप कहते हैं यार लंच है, आप कहते चले यार रास्ते में एक क्या है, क्या है, ढाबा है. अच्छा ढाबा नहीं यार, ईट फ्रेश, मैं एग्जांपल दे रहा था, ये ईट फ्रेश वेजिटेबल्स, कई सब्जी वो वाला है, सब्जी फ्रूट वाला. Okay, so you want to buy bananas. आप कहते हैं यार 100 रुपए की bananas, 100 रुपए की bananas. If you go by taxi, you will still buy 100 rupees bananas. If you go by BRT, you will still buy 100 rupees banana. क्या अवॉइडेबल है ये कॉस्ट? किसी भी ऑप्शन में अवॉइडेबल है? नहीं. तो ऐसी कॉस्ट जो कि अवॉइडेबल ना हो, अनअवॉइडेबल हो, that is irrelevant. भूल जाए इसको हटा दें, इसका कोई भी फायदा नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं है. रिमेंबर, डिसीजन मेकिंग के लिए. इफ यू आर डूइंग जर्नल एंट्रीज, तो आपने यू नीड टू रिकॉर्ड one class. If you are making journal entries and you are going to university, तो आप कौन कौन सी कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे? All cost. सारी कॉस्ट ना, whether it is avoidable, unavoidable, whether it is relevant, irrelevant, आपने सबको लिखना है. ठीक है? आप कहेंगे यार टिकट खरीदा 100 रुपए का या 60 रुपीस का, रिकॉर्ड. बनानास खरीदे 100 रुपीस के, रिकॉर्ड. लेकिन डिसीजन मेकिंग में यू विल नॉट कीप दैट इन माइंड व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन. इसको आप बिल्कुल भूल जाएंगे. ठीक है? दिस इज अवॉइडेबल. जो अनअवॉइडेबल है, सॉरी दिस इज अनअवॉइडेबल, जो अवॉइडेबल है उसको दिमाग में रखें. ठीक है? टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट आर नेवर रेलेवेंट इन एनी डिसीजन. ये दो कॉस्ट कभी भी इररेलेवेंट नहीं होते, ये आर ऑलवेज इररेलेवेंट. कौन कौन सी? सम कॉस्ट. सम का क्या मतलब होता है? सम जो हो गई है ना, जो पहले हो गई है. कल आपने ये आज का दिन था, दिस इज 16 दिसंबर. 15 दिसंबर को you bought a pair of shoes for ₹1000. ठीक, शूज. अब आप कहें कि नहीं यार मैंने शूज खरीदे हैं तो मैं टैक्सी में जाऊंगा. Now this should not be the criteria to decide whether you will go by taxi or by BRT. ठीक है? वो सम कॉस्ट नहीं, वो पहले हो गई, वो तो अब वापस नहीं आ सकती, वो तो हो गई. तो जो पुरानी कॉस्ट जो हो गई है उसको भूल जाए, उसका कोई भी डिसीजन मेकिंग में उसका कोई भी रोल नहीं है, उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं है. ओके. सेकंड, फ्यूचर कॉस्ट दैट डू नॉट डिफर बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स. एक सम कॉस्ट इस्तेमाल नहीं होती डिसीजन मेकिंग में, एक वो वाली फ्यूचर कॉस्ट व्हिच इज नॉट डिफरेंशियल, जो डिफरेंट होती है उसको हम लोग डिफरेंशियल बोलते हैं. ठीक है? तो हमने कहा जो सेम हो, अगर इन दोनों का किराया सेम होता तो क्या ये कॉस्ट रेलेवेंट होती? नहीं, ये कॉस्ट रेलेवेंट ना होती. फिर मैं कुछ और चीज देखता डिसाइड करने के लिए कि टैक्सी में जाऊं या बीआरटी में जाऊं. ठीक है? अभी दोनों कॉस्ट में फर्क है तो मैं डिसाइड कर सकता हूं, लेकिन अगर दोनों कॉस्ट सेम हो तो फिर मैं डिसाइड नहीं कर सकता इस बेसिस पे. देन दिस कॉस्ट वुड बी इररिलेवेंट. गॉट द आइडिया क्लास? Yes. गॉट द आइडिया सो फार? डिफरेंशियल कॉस्ट, सम कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट, हमने 4-5 चीजें पढ़ ली. ठीक है? सारी चीजें समझ आ रही हैं? Yes, sir. रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी होती है? Which is relevant in decision making. Which cost is relevant in decision making? Differential. ठीक. Some cost is always irrelevant. Always irrelevant. कभी भी relevant नहीं होगी. ठीक. Cost which is same is also irrelevant. Unavoidable costs are irrelevant. Unavoidable भी irrelevant. ठीक है? सही है?
Clear so far? Yes. Okay, let's move on. Relevant cost analysis is a two-step process. फिर आपको करना क्या है? आपको जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे आपने ये काम करना है. सबसे पहले क्या करना है? Eliminate cost and benefits that do not differ between alternatives. जो सेम होंगी उसको उठाकर उसी वक्त eliminate कर दो. उसको कोई भी इस क्वेश्चन से मतलब from examination point of view, from your decision making activity, इसका कोई भी से ताल्लुक नहीं है, इसको हटा दें. Second, use the remaining costs and benefits that differ between alternatives in making the decision. जो कि differential है, उसको decision making में इस्तेमाल करना है. Okay? The costs that remain are the differential or avoidable cost. इसका मतलब relevant cost equals differential and avoidable. ठीक है? क्लियर हो गया? Yes. रेलेवेंट वो है जो डिफरेंशियल है या अवॉइडेबल है. इररेलेवेंट जो सेम है वो इररेलेवेंट है. जो संक है वो भी इररेलेवेंट है. जो अनअवॉइडेबल है वो भी इररेलेवेंट है. Yes. ठीक है? तो इररेलेवेंट ये रेलेवेंट होगी. इररेलेवेंट कौन सी होगी? इररेलेवेंट. इररेलेवेंट संक और अनअवॉइडेबल अनअवॉइडेबल और सेम. फ्यूचर हो लेकिन सेम हो. फ्यूचर क्राइटेरिया ये है कि सेम है या नहीं. ठीक है? तो ये सारे इररेलेवेंट. गॉट द आइडिया? Yes. गॉट द आइडिया सो फार? Yes. ओके. डिफरेंट कॉस्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अच्छा, फिर एक और बात है, रटा नहीं माना. किसी एक क्वेश्चन में कोई कॉस्ट रेलेवेंट है तो हो सकता है वो दूसरे क्वेश्चन में इररेलेवेंट हो जाए. तो आपने ये नहीं कहा कहना कि सर इस क्वेश्चन में तो ये वाली कॉस्ट जो थी रेलेवेंट थी, एक और क्वेश्चन आया मैं डेटा चेंज कर दूं और उसमें आप कहेंगे उसमें भी ये रेलेवेंट होगी. नहीं, आपने सिचुएशन देखनी है. ये क्राइटेरिया, ये रेलेवेंट इक्वल्स डिफरेंशियल और अवॉइडेबल, इररेलेवेंट इक्वल्स सम अनअवॉइडेबल और सेम कॉस्ट. ठीक है? ये क्राइटेरिया है. पूरा चैप्टर इसके ऊपर है. ये पूरा चैप्टर इसी चीज के ऊपर है. बस दिस इज द थियरी व्हिच यू नीड टू नो फॉर दिस होल चैप्टर. सही है? स्टार्ट करें. Okay, let's start G. In this chapter, we will look at different criteria, different decision making scenarios. Different scenarios को देखें. ठीक है? Scenarios change होते रहेंगे. एग्जाम में सिनेरियो चेंज हो सकते हैं. आपकी बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस. जितने मेरे एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं उससे भी बहुत अच्छे. तो अगर आप बुक के क्वेश्चन सारे कर लेते हैं, ठीक है, so that means you will be safe. ठीक है? You will be able inshallah to perform good in exam. ठीक? Start करें question? Okay, so this is the first one. Identifying relevant cost. Cynthia, Boston student, is considering visiting her friend in New York. She can drive or take the train. So now you have two alternatives or options. You can drive or train. दो चीज. By car it is 230 miles to her friend's apartment. By car it is 230 miles. ठीक है? Distance 230 miles उसकी घर तक का रास्ता है गाड़ी में. She is trying to decide which alternative is less expensive and has gathered the following information. So now she is trying to see कि which alternative is less expensive and she would go for that. ठीक है? अगर ट्रेन सस्ती पड़ती है ट्रेन पे जाएंगे, अगर गाड़ी सस्ती पड़ती है तो गाड़ी पे जाएंगे. ठीक है? तो अब वो दोनों के कॉस्ट को चेक करेंगे. दोनों के कॉस्ट एंड बेनिफिट. कॉस्ट एंड बेनिफिट. जहां पे भी कॉस्ट का वर्ड आ रहा है साथ साथ बेनिफिट का वर्ड ऐड करते जाएं. कॉस्ट एंड बेनिफिट. ठीक है? ओके. ऑटोमोबाइल कॉस्ट बेस्ड ऑन 10,000 माइल्स ड्रिवन पर ईयर. दिस इज ऑल योर ऑटोमोबाइल कॉस्ट. ये सारी की सारी गाड़ी की कॉस्ट है. ठीक? कौन कौन सी कॉस्ट है? एनुअल स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑन कार. Annual cost of fixed items 2800, cost per mile 0.280. Straight line depreciation, गाड़ी की depreciation, is it relevant or irrelevant? जी क्लास, relevant or irrelevant? और साथ साथ मुझे आपने बताना है कि क्यों. सब कह रहे हैं irrelevant, सब कह रहे हैं irrelevant, कोई भी relevant नहीं कह रहा. नहीं, गाड़ी की depreciation, is it a relevant cost और irrelevant cost in this decision? जो आप ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि क्या मैं गाड़ी में जाऊं या मैं ट्रेन पर जाऊं. ठीक है? तो गाड़ी की जो डेप्रिसिएशन है, क्या वो गाड़ी की डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट एक्सपेंस, क्या वो इस डिसीजन के लिए
रेलेवेंट है या इररेलेवेंट? Irrelevant. Relevant. अच्छा, कितने कह रहे हैं इररेलेवेंट? ओके, कितने कह रहे हैं रेलेवेंट? ओके, अच्छा, अब बताएं क्यों रेलेवेंट है, फिर बताएं क्यों इररेलेवेंट है। जी, क्यों रेलेवेंट है? Some cost है. डिप्रिसिएशन सम होती है। डिप्रिसिएशन क्या है बेसिकली? व्हाट इज डिप्रिसिएशन? Already हमने काफी एक मिनट, So loss in value है ना over time. लॉस इन वैल्यू है ओवर टाइम। लॉस इन वैल्यू Value कब होती है ना ऐसे? डिप्रिसिएशन की क्या डेफिनेशन? डिप्रिसिएशन नहीं, बिल्कुल ही नहीं। डेफिनेशन ऑफ डिप्रिसिएशन जी क्लास, डिप्रिसिएशन की क्या डेफिनेशन? डिप्रिसिएशन की डेफिनेशन वैल्यू का डिप्रिशिएट होना। हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हम अकाउंटिंग की बात मानेंगे, हम कोई नॉर्मल टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं करेंगे कि वो क्या कहता है। जो लोग कहते हैं कहने दें कि डिप्रिसिएशन इज व्हाटएवर, आई एम कंसर्न्ड विद डिप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग, दैट्स इट। जी, व्हाट इज डिप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग? एक्सपेंसिव, एक्सपेंस तो है ऑब्वियसली, लेकिन है क्या? व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? इसको क्या, हाउ वुड यू डिफाइन इट? लॉस ऑफ लॉस ऑफ वैल्यू। ओके बस एक मिनट, मैंने ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी और मैंने बिल्कुल उसको गैराज में खड़ी कर दी, मैं पूरे साल उसको इस्तेमाल नहीं करता, इज देयर एनी लॉस इन वैल्यू? यस देयर इज देयर इज अ लॉस इन वैल्यू। इंजीनियर अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि देयर इज अ इंक्रीज इन वैल्यू, इन्फ्लेशन है, गाड़ी महंगी हो गई है, देयर इज अ इंक्रीज इन वैल्यू, तो फिर सर रिलेटिव रिलेटिव ना, there would be an increase in value, there would never be a decrease in value in Pakistan. How would you decide depreciation? How would you define depreciation? सर यूज ऑफ useful. Oh, ये तो फिर easy ना। सर मुझे पता है आप क्या हाँ, बोलें। to allocate the cost of a Exactly. Exactly. To allocate the cost systematically of an asset over its useful life. Allocation का problem है, अगर depreciate नहीं भी हो रही, building, you buy a building today and I bet after 5 years, although in your records it will become zero, but its value will still be there. In fact, its value will increase. Yes. कोई भी बिल्डिंग देख ले 5 साल पहले और आज, उसकी तो वैल्यू ज्यादा हुई है, ज्यादा हुई है। So this is not about value. This is about allocating the cost of an asset over its useful life. क्यों? अगर आपने 5 रुपए की कोई चीज खरीदी ना, तो वो कहते हैं कि 5 रुपए तो बहुत ज्यादा है, ठीक है? और ये चीज आप 5 रुपए की आपने खरीदी, ये आप सारा का सारा एक साल में इस्तेमाल नहीं कर रहे, 5 सालों में इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहेंगे ठीक है, पहले साल 1 रुपए को एक्सपेंस कर दूंगा, नेक्स्ट ईयर 1 रुपए, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो 5 सालों में मैं इसकी वैल्यू को जीरो कर दूंगा, ठीक है, बुक्स में। अदरवाइज उसकी फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, Yes, sir. ठीक है? और हो सकता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इट Increase. appreciates, increase, ठीक है? आपने किसी ने कोई गाड़ी खरीदी आज से कोई 10 साल पहले, 15 साल पहले, लेकिन बेच दी लेकिन बेच दी, कब खरीदी और कितने की खरीदी? सर याद नहीं, लेकिन बेच ही प्राइस क्या बेची हुई प्राइस याद है। मैंने एक गाड़ी ली थी 2007 में फॉर 4,20,000 और उसको मैंने बेचा 2020 में, कोविड में, ठीक है? और 7 से 20, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 13 गुड इयर्स। 13 इयर्स में शुरू में मैं उसको बड़ा साफ सुथरा और सब कुछ रखता था, बहुत ख्याल मैंने उसको आखिर तक रखा है, ठीक है? जरा से भी कोई स्क्रैच आता, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ पेंटर और डेंटर, मैं पूरा का पूरा पीस नया लेकर आया था, ताकि मुझे उसको पेंट ना करना पड़े, ओरिजिनल पीस किसी और गाड़ी का उतरा हुआ पीस उसके ऊपर लगाना, ताकि वो बिल्कुल ओरिजिनल, तो ओरिजिनल ही थी, आखिर तक ओरिजिनल थी। बट 13 इयर्स आई यूज्ड इट, आई गॉट द बेनिफिट। इफ आई हैव टू डिप्रिशिएट इट, सो मैक्सिमम डिप्रिसिएशन कार की 6 इयर्स 7 इयर्स अलाउड है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, 10 इयर्स कर दे। सो इन माय रिकॉर्ड, अगर मेरा रिकॉर्ड होता तो उसमें उसकी वैल्यू कितनी आ रही होती? जीरो। और वो मैंने कितने की बेची? 4,80,000। I got it for 430, used it, ठीक है, used it for good 13 years, sold it for a 50,000 profit.
ठीक है, तो इंक्रीज इन वैल्यू नहीं, नेवर, डिक्रीज इन वैल्यू तो नहीं है ही, इंक्रीज इन वैल्यू। सो दिस इज डेप्रिसिएशन। अब बताएं ये डेप्रिसिएशन क्या है? डिसीजन मेकिंग फ्यूचर के लिए किया जाता है। डिसीजन मेकिंग फ्यूचर के लिए किया जाता है। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो आपने उसके पैसे दे दिए थे जब आपने खरीदी थी। डेप्रिसिएशन इज मेयरली, इज ओनली एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट, कि आप उसको एलोकेट करते रहे, ठीक है, कि इतने साल इतना एलोकेट कर दो, फिर इससे अगले साल इतना कर दो, इससे अगले साल इतना लिख दो, इससे अगले साल इतना कर दो। उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, जो मेथड फॉलो करते हैं आपकी मर्जी है, ठीक है। सो इन एसेंस ये तो हो चुका है यार, ये तो उसकी एलोकेशन है, ये कॉस्ट मैं पे तो नहीं कर रहा ना। और अगर पे कर भी रहा हूं तो अगर मैं ट्रेन में चला जाऊं तो क्या उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो जाएगा? नो कम होगा उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? नहीं, सेम रहेगा ना। सो इट इज इररिलेवेंट बिकॉज़ पार्टली इज इट या तो ये सम कॉस्ट है या ये दोनों केसेस में सेम, और सेम कॉस्ट आप लोगों ने क्या कहा था? सेम, अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल नहीं है ना। अगर मैं गाड़ी खड़ी भी रखूं ना, एक और बात याद रखिए, अगर मैं गाड़ी खड़ी भी रखूं, पूरे साल इस्तेमाल भी ना करूं, तो अकाउंटिंग के मुताबिक मुझे उसको डेप्रिशिएट तब भी करना है, क्योंकि उसकी तो जो लाइफ ऑफ एन एसेट है उसके ऊपर इसको डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गैसोलीन। कॉस्ट ऑफ गैसोलीन रेलेवेंट, हाउ मच? अमाउंट बताए ना, रेलेवेंट है लेकिन कितना अमाउंट है? 0.0550 मल्टीप्लाई बाय माइल्स। तो माइल्स कितने हैं? 11.5। किससे मल्टीप्लाई किया? 0.05 इनटू माइल्स 230 माइल्स ड्रिवन। ऊपर आप मुझे क्या कह रहा है? बाय कार इट इज 230 माइल्स टू हर फ्रेंड्स अपार्टमेंट। 230 miles is to her friend's apartment. English सबको आती है माशाल्लाह? थोड़ी। तो 230 miles to her friend's apartment का उर्दू तर्जुमा क्या है? 230 मील उसके अपने दोस्त के घर जाने तक। तो क्या वापसी पे आप गाड़ी को अपने कंधों पे उठा के लेके जाएंगे? पैदल भी जा सकते हैं, गाड़ी उधर छोड़ दें। तो आपको वापस भी तो आना है। यस तो वापसी पे पेट्रोल नहीं लगेगा, पानी लगेगा। उससे वो तो दुआ पैसे लगेगी। नहीं लिखा हुआ कि उसकी वापसी कभी कहते वहां से चढ़ाई है। माशाल्लाह। अगर मैं आपसे पूछूं, लेकिन बता कि आपने एक मिनट, आपने लाहौर जाना है, ठीक है, किसी शादी पर, और मैं एक्सपेंस आपसे कहूंगा कैलकुलेट करें कि बाय ट्रेन कितना होगा, और आप एक साइड बाय ट्रेन लगा दें टिकट के, बाय ट्रेन एक साइड का टिकट इतना है, तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि वापसी का टिकट कौन दे रहा है? शायद और भी बस रहने हैं। लगे। वो तो उसका डिसीजन है। सर, मतलब क्या आप करें? किसी रिलेटिव के साथ जाते हाँ सर, ये भी है, खुद पे कॉस्ट आएगी ना। सही बात है। लेकिन डिसीजन में तो ये अच्छा ठीक है, ये टैक्टिक्स हैं, ये जुगाड्स हैं पैसे बचाने के लिए। Yes, sir. लेकिन ये क्वेश्चन है जिसमें आप लोग बिल्कुल लॉजिकल डेटा देंगे। तो लॉजिकल ये है कि जब आप किसी के घर जाएंगे तो आप वापस भी आएंगे, Yes, ठीक है, उसके घर बैठ नहीं जाएंगे, ठीक। सो दैट मींस इंस्टेड ऑफ 230 इट विल बी 460 या 230 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, बोथ वेज। 23 बस बस। 23 टोटल 23। सो 23 रुपीस आप इधर रखें। आगे चलो, एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑटो इंश्योरेंस एंड लाइसेंस। एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑटो इंश्योरेंस एंड लाइसेंस नहीं irrelevant। irrelevant. Why? Why? संक है। संक का मतलब होता है जो पहले इनकर्ड, ठीक है। तो इंश्योरेंस अगर आपने पहले से पे कर दिया तो संक है। लेकिन एक और एंगल भी इसको देख ले कि अगर मैं ट्रेन पे जाऊं तो तब भी इंश्योरेंस की कॉस्ट तो मुझे पे करनी पड़ेगी ना। यस सर। तो ये अनअवॉइडेबल, ठीक है, इट्स एन अनअवॉइडेबल कॉस्ट। तो इररिलेवेंट, इसको भी हटा दें। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। यस सर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स सर दोनों नहीं आ सकते इसमें। किस तरह? सर ट्रेन की भी मेंटेनेंस ही होती है और अपनी गाड़ी की भी आप मेंटेनेंस की कॉस्ट रखते हैं। ट्रेन की मेंटेनेंस आप करेंगे? तो जब आप किसी ट्रेन पे जाएंगे तो वो आपसे कहेगा कि मुझे टिकट भी दें और फिर मेरी मेंटेनेंस भी करें और फिर उसको साफ भी कर दें ट्रेन को थोड़ा, और फिर उसको पेंट भी करवा दें आप। थोड़ा इंसानी तो वो कपड़े कपड़े मार कर दे। देते हैं ना। ओके, सो इट इज रिलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। अगर आप गाड़ी में नहीं जाएंगे तो मेंटेनेंस आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी ना। गाड़ी देखिए, मेंटेनेंस इज विद ड्राइविंग,
The more you drive, the more will be your maintenance cost. सर लेकिन वो अपनी फी में वो मेंटेनेंस वगैरह का तो उसने तो चार्ज कर दिया ना ट्रेन वाले ने, वो तो ट्रेन वाले ने जो आपसे चार्ज कर रहा है टिकट, लेकिन फिलहाल हम ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, दिस इज ऑटोमोबाइल कॉस्ट। ट्रेन वाले में आएंगे फिर देखेंगे ट्रेन का टिकट कितना है, ठीक है। फिलहाल तो ट्रेन की हम लोग बात ही नहीं कर रहे, फिलहाल हम ऑटोमोबाइल की कॉस्ट देख रहे हैं, उसके बाद इसको ट्रेन की कॉस्ट देखेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, व्हिचएवर इज लो और लेस एक्सपेंसिव यू विल गो फॉर दैट, ठीक है। ओके, सो 0.065 मल्टीप्लाई बाय 460 once again। ऐसा ना हो कि आप कहें कि एक साइड का तो मेंटेनेंस कॉस्ट है दूसरे का नहीं। ओके, 0.065 मल्टीप्लाई बाय 230 मल्टीप्लाई बाय 2 जी 29.9 क्लियर है जी। ओके, पार्किंग फीस एट स्कूल, पार्किंग फीस एट स्कूल, सर ये पार्किंग फीस एट स्कूल। सर ट्रेन की कौन सी पार्किंग होगी? ये क्या लिखा है? अभी वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोमोबाइल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेन। फिलहाल ऑटोमोबाइल की कॉस्ट तो पूरी करें ना, फिर ट्रेन के साथ कंपेयर करें, ठीक है जी। पार्किंग फीस एट स्कूल, व्हाट इज दिस बाय द वे? फिलहाल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज ऑटोमोबाइल पार्किंग फी एट स्कूल। सर यहाँ पे जो क्या देते हैं? हाँ, जो यहाँ पे आपसे लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी दोस्त के घर जा रहे हैं तो ये वाली फी जो है जो आपसे लेते हैं ताकि आप अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी करें, इस पे कोई फर्क पड़ेगा? ये फी जो आपसे ये लोग लेते हैं ये क्या होती है? दिस इज फिक्स्ड एंड इट इज फॉर द होल मंथ और ईयर व्हाटएवर सेमेस्टर, ठीक है। तो अगर इस पूरे सेमेस्टर में आप गाड़ी ना लेकर आए तो क्या ये फी कम हो जाती है? नहीं कम होती। सो दिस इज अनअवॉइडेबल। सम भी आपने शुरू में दे दी सेमेस्टर के स्टार्ट में, और फिर दूसरा ये कि ये कम भी नहीं होगी अगर आप कहते हैं कि एक दिन गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा तो ये फी कम हो जाएगी मेरी, नहीं, ठीक है। सो अनअवॉइडेबल, सो इट इज इररिलेवेंट। तो अब तक रेलेवेंट कॉस्ट कितनी आई? 2 आई। लेट्स मूव ऑन। सर कौन सी थी? कॉस्ट ऑफ गैसोलीन और फिर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, ठीक है। ये आ गई कॉस्ट ऑफ गैसोलीन, ओके, एंड देन वी हैव पार्किंग, अच्छी तो पार्किंग फी है, ठीक। ओके, ऑटोमोबाइल कॉस्ट बेस्ड ऑन 10,000 माइल्स ड्रिवन पर ईयर। अच्छा, इसको छोड़ दें, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे है। रिडक्शन इन रीसेल वैल्यू ऑफ कार पर माइल ऑफ फेयर, reduction in the resale value of car per mile of fare, reduction in the resale value। अब resale value में reduction आ रही है क्यों? per mile of fare। So when you use it the value goes down, ठीक है। अब मुझे बताएं अब क्या होगा? रेलेवेंट होगी ना, क्योंकि अगर आप गाड़ी में जाएंगे तो आपकी गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। और कितनी कम होगी? 0.026 मल्टीप्लाई बाय 660 460। ओके जी, क्या ग्रेड 11.96 0.026 मल्टीप्लाई बाय 230 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 11.96 11.96। ओके, आगे चलिए। राउंड ट्रिप ट्रेन फेयर। अब ये आ गया ट्रेन का फेयर। राउंड ट्रिप का क्या मतलब होता है? आना जाना। ऐसा ना हो कि आप कहें सर एक तरफ से तो मैं चला जाऊंगा, दूसरी तरफ से मैं आ जाऊंगा, अपने अंकल के साथ से घूमूंगा ट्रेन का टिकट, ठीक है। 104, ठीक। 104 को इधर साइड पे आया करके, इज इट रेलेवेंट और इररेलेवेंट? पहले तो बताएं, इज इट रेलेवेंट और इररेलेवेंट? रेलेवेंट है ना। अगर आप ट्रेन में जाएंगे तो ये होगा, अगर ट्रेन में नहीं जाएंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, सो इट इज रेलेवेंट कॉस्ट। बेनिफिट्स ऑफ रिलैक्सिंग ऑन ट्रेन ट्रिप। सर अनअवॉइडेबल है तो अनअवॉइडेबल है तो सर आपने अनअवॉइडेबल है और रेलेवेंट है। सॉरी, अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल तो नहीं, अवॉइड करते हैं ना, यानी अगर आप गाड़ी में जाएंगे तो अवॉइड कर सकते हैं ना इसको, ओके। अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ रिलैक्सिंग ऑन ट्रेन ट्रिप। उसने नहीं दिया ना, उसने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, लेकिन लेट्स से इसकी वैल्यू गिवन होती तो फिर ये क्या होता? रेलेवेंट होता सर। अगर मैं आपसे ये कहूं, देखिए अब ट्रेन का आइडिया आपका थोड़ा डिफरेंट है और इनका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। आपका ट्रेन का आइडिया ये है कि ट्रेन बहुत ही कोई अजीब किस्म की सवारी है
जो कि शायद आप में से किसी ने अब तक नहीं की सर, है। ये हमने किए सर तो बड़ा मजा आता है सर, क्या करते हैं बाहर क्या होता है ऐसे बंदा एक मूवी वाली फीलिंग आ रही थी सबसे बर्फ में लेट से कौन सी मूवी बनी थी? वो चेन्नई एक्सप्रेस की थी वो वाली फीलिंग आ सर रही मैं आया हूँ लेकिन फिर कभी भी ऐसे गलती नहीं फिर कभी भी ऐसी गलती नहीं हाँ। करना। तो हमारा आइडिया डिफरेंट है, बकरियों के साथ हमारा आइडिया डिफरेंट है, हमारा आइडिया डिफरेंट है, उनका आइडिया डिफरेंट है। ठीक है, उनका आइडिया इसलिए डिफरेंट है कि वहाँ पे ट्रेन इस तरह नहीं है, वहाँ पे ट्रेन बहुत रिलैक्सिंग होती हैं, नॉर्मली एन एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रेवल, थोड़ा एक्सपेंसिव होती है ट्रेन, बहुत खूबसूरत होती है, बहुत आरामदेह होती है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप लोग जब ट्रेन में जाएं तो आप रिलैक्स कर लेते हैं। गाड़ी में तो आपको गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है ना, कॉशियस होकर बैठना पड़ता है, फिर ये ट्रेन में आप रिलैक्स करते हैं, आराम से बुक खोल के पढ़ें, एंजॉय करें, काम करें, लैपटॉप खोल लें। ठीक है, हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, लेकिन दिस इज द आइडिया ऑफ ट्रेन ट्रेवल इन कंट्रीज अब्रॉड। सो इट हैज अ बेनिफिट, इसका बेनिफिट है कि आप ट्रेन में जाते हैं ना तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपको टाइम बच जाता है। ठीक है, और सीनिक व्यूज होते हैं बहुत सारे। हमारे यहाँ पे तो आप जाएंगे पता नहीं कहाँ से ट्रेन गुजरेगी, पाटक नगर तेरी, ठीक है, नगर में तेरी, ओके। लेकिन वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत जगह होंगी, वहाँ से आप गुजर रहे होंगे, ठीक है, और आप एंजॉय करेंगे ट्रेन को। तो वो ये कह रहा है कि इसका बेनिफिट है, लेकिन उसने कोई वैल्यू नहीं दी। अगर इसका वैल्यू होता तो ये एक पॉजिटिव चीज होती। देखें, ये अब तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कॉस्ट है। अगर इसका कोई बेनिफिट है तो वो कॉस्ट से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी चीज का कोई बेनिफिट आएगा तो वो कॉस्ट से माइनस हो जाएगा, लेकिन नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि आपको किसी चीज से कितना सुकून मिलता है ट्रेन, या आप कहें कि मेरे लिए कंफर्टेबल जहाज है, और मैं आपसे कहूं कि आप जहाज में बैठ के जाएं तो कितना सुकून मिलता है, इसको आप लिख कर दें फिगर्स में। सो इट्स नॉट पॉसिबल ना, ठीक है, दैट्स हार्मलेस। कॉस्ट ऑफ पुटिंग डॉग इन कैनल व्हाइल गॉन, इररिलेवेंट। यानी अगर आप ट्रेन में जाएं या आप गाड़ी में जाएं, आपने अपने कुत्ते को उधर छोड़ के जाना है और उसके लिए आपको कितनी फी देनी पड़ेगी? 40 रुपए। ठीक है, तो बस ठीक है जी। वासिफ, इतना बूढ़ा कुत्ता है, 40 डॉलर कौन खर्चेगा एक दिन में? जो कुत्ते रखते हैं वो फिर खर्चा करते हैं। हाँ सर, ठीक है, हम लोग तो कुत्ते को देख के कहते हैं कुरे। अभी तो 40 से ज्यादा होता है। ठीक, ओके आगे चलें। बेनिफिट ऑफ हैविंग कार इन न्यूयॉर्क, हाँ? बेनिफिट ऑफ हैविंग कार इन न्यूयॉर्क। आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं ना अपने फ्रेंड्स से, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो अगर न्यूयॉर्क में आपके पास गाड़ी होगी तो आप आराम से हर जगह घूम फिर सकते हैं। सो दैट्स अ बेनिफिट ऑफ कार। ठीक है, बट वंस अगेन 10,000 प्लस और क्या और वो तो एक मेजरमेंट स्केल है। सर ये नंबर के लिए वो रस्म जा रहे हैं सर। कम अगेन, अपना दोबारा बोलें। सर जी जल्दी बात जैसी बात है। ओके, अच्छा, हैसल ऑफ पार्किंग कार इन न्यूयॉर्क। सर फी पैसे को वो रश सर जी टिपिकल हैसल, वो फी की बात नहीं कर रहा, फी तो ये है, रश बहुत होता ठीक है, रश बहुत होती है, पार्किंग आपको स्पेस नहीं मिलती। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बिग सिटीज। अभी तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर अभी उस दिन मुझे बता रहा था मेरा ड्राइवर कि इफ यू गो टू सदर, ठीक है, आर यू रेगुलर विजिटर ऑफ सदर? यस सर आई हैव बीन देयर फॉर इयर्स नाउ, लेकिन सुना है कि अगर भी आप जाएं तो आपको पार्किंग नहीं मिलती, बहुत प्रॉब्लम होता है। सो दिस इज द हैसल दे आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द हैसल दे आर टॉकिंग अबाउट। अब है बस है, whatever is the case, इसको थोड़ा पॉज करें, पॉज स्टॉप नॉट स्टॉप। आपको अमाउंट नहीं गिवन, तो अगर अमाउंट नहीं गिवन तो फिर आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते ना। अदरवाइज अगर हैसल का कोई अमाउंट गिवन होता तो ये आप कहां पे ऐड करते? कॉस्ट में। किस चीज की कॉस्ट में? गाड़ी वाली कॉस्ट में। ठीक है, देखिए ये गाड़ी वाली कॉस्ट है और ये ट्रेन की कॉस्ट है। ओके, आगे चलें। पर डे कॉस्ट ऑफ पार्किंग कार इन न्यूयॉर्क। अब आ गया, अगर मैं गाड़ी लेके जाऊंगा तो मैं पर डे 25 पार्क करूंगा और हर दिन कितने पैसे दूंगा? 25 रुपीस। अब अगर मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूं 230 माइल्स, ठीक है, तो क्या आइडिया है मैं उधर कितने दिन रुकूंगा? सर एक हफ्ता चाहिए, तो एक हफ्ता ही है सर। फारिग लोग एक हफ्ता रुकेंगे, अदरवाइज मैं अगर जा रहा हूं मैं फ्रेंड से मिलूंगा और फिर एक दिन रुक के वापस आ जाऊंगा। सर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं देखते सर? मैं मिलने जा रहा हूं विजिटिंग हर फ्रेंड। उसने नहीं कहा फॉर साइट सीइंग, फॉर गोइंग टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, बस वो नहीं, उसने कहा नहीं ना, बस नहीं तो नहीं। ओके, सो इट शुड बी 25 into 1 hours
1 तो आप जाएंगे और फिर उसी दिन वापस आएंगे तो आपको 25 देने पड़ेंगे। देखें अगर आप गए वहां पे रुके और रात को वापस आ गए तो आपको पार्किंग वाले को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 25। और अगर आपने रात गुजारी और आप अगले दिन वापस आएंगे तो आपको पार्किंग वाले को कितने देने पड़ेंगे? 50। ठीक है, सो लेट्स से लॉजिकली मैं जाऊंगा, रात रुकूंगा, फिर अगले दिन वापस आऊंगा, सो इट मस्ट बी 25 into 2 and is it relevant or not? Relevant na? Relevant and it is a cost now, so it should be added in the cost of the car. Cost of the car ये है सर, यहाँ पे आप ऐड कर दें 25 into 2 based on assumption कि मैं एक रात रुक रहा हूँ, ये बात याद रखें। पता नहीं इसने क्या assumption दी है, उसी दिन वापस आ रहा है तो फिर 25 होगा 50। ओके, और अगर हमने assumption दिया था फिर हाँ अगर आप वासिफ की तरह हैं कि आपके बस दोस्त के पास जा रहा हूँ, एक हफ्ता रुकूंगा तो फिर मल्टीप्लाई वैसे जैसे टाइम स्क्वायर ट्रेनिंग लेने टाइम स्क्वायर जरूर जाना चाहिए, ठीक जरूर जाना चाहिए, और रात को उधर और भी मजा आएगा। ठीक, ओके, ये सारी बातें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं। आगे चलें, आगे चलें। ओके, सो नाउ लेट्स ऐड देम अप क्लास, ऐड करें। सारी कॉस्ट कितनी होगी? क्लास ऐड देम अप 124.86 अक्सर गलती 114 मेरे हिसाब से यार बहुत अक्सर ये आपका हिसाब और मेरा हिसाब क्या है? कैलकुलेटर में करें आपको पता चलेगा हिसाब क्या है। 114.86 114.86 और ट्रेन का कितना है? 104। तो कौन सा अच्छा हुआ? ट्रेन, so take the train। ठीक है, that's how you decide, लॉजिकल। और अगर नहीं आप कहेंगे नहीं मैं तो गाड़ी में जाऊंगा, बस गाड़ी मैंने खरीदी क्यों है, इसलिए लिए कि मैं ऐश करूं, but that is something। और सर ट्रेन स्टेशन से दोस्त की घर भी तो जाता हूं, टैक्सी का जो हां इसने वो नहीं लिखा, टैक्सी का जो टैक्सी का किराया वो देखो कितना होगा मेरा। चलिए वो तो दोस्त आएंगे ना कैसे न्यूयॉर्क है ठीक हां ठाक न्यूयॉर्क है ठीक ठाक हो, ठीक ठाक लेकिन फिर मैं टैक्सी में क्यों जाऊंगा? फिर मैं वहां की लोकल, वहां पे तो देयर इज अनदर मींस ऑफ ये ट्रांसपोर्ट। समथिंग उसकी कार्ड चाहिए, वो कार्ड भी तो खरीदना होगा। तो वो अक्सर ऐसे होता है, मैं आपको बता दूं अक्सर क्या होता है। तो बहुत सारे एक और ट्रैवल हैक बताऊं। So now let's have a look at the next scenario। अब एक और सिनेरियो देखते हैं। अभी हमने सिनेरियो देखा वो नॉन बिजनेस था ना, बिजनेस नहीं था ना, ठीक है। हम लोग चूंकि बिजनेस स्टडीज है तो हम लोग बिजनेस सिनेरियोज को देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो जो इससे पहले वाला है उस तरह का कोई सिनेरियो, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब ये क्या है? The management of company is considering a new labor saving machine. A labor saving machine means कि it would save labor cost कम हो जाएगी for 3,000 per year। Sorry, a new labor saving machine that rents for 3,000 per year। उसका रेंट कितना है उस मशीन का? 3,000 एक साल का। Data about the company's annual sales and cost with and without the new machine are, so this is the data, current which means without machine and this is with machine, ठीक है। अब फर्क क्या क्या पड़ेगा? सेल्स would remain same। वो कह रहा है फर्क पड़ेगा कॉस्ट के अंदर ना, लेबर सेविंग यानी लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, रेलेवेंट है, कम हो जाएगी। लेकिन साथ जब लेबर की कॉस्ट कम होगी तो साथ ही टोटल कॉस्ट भी कम होगी ऑब्वियसली। लेकिन क्या होगा? वो क्या लिखा है? दैट मशीन दैट रेंट्स फॉर 3,000 पर ईयर। तो मशीन का रेंट आ जाएगा ना, तो लेबर की कॉस्ट तो कम होगी लेकिन मशीन का रेंट मतलब फिर एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ जाएगा मशीन का रेंट, ठीक है। ओके चलें, सेल्स सेम। अगर सेल्स सेम है सो इज इट अ डिफरेंशियल कॉस्ट? नो। इज इट अ रेलेवेंट कॉस्ट? सेम है ना, डिफरेंशियल नहीं है। तो अगर डिफरेंशियल नहीं है तो फिर इररेलेवेंट, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल रेलेवेंट होता है, सेम जब होता है सेम इररेलेवेंट होता है, इसको हटा दें। लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल्स 5,000 into 14। क्या इस मशीन के लेने से डायरेक्ट मटेरियल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, it would remain the same, so that means is it relevant? Irrelevant, same रहेगा, इसको भी हटा दें। डायरेक्ट लेबर, उसने क्या कहा था कि लेबर सेविंग, तो इसका मतलब लेबर की कॉस्ट कम होगी। 5,000 units multiplied by 8 which equals 40,000 करंट सिचुएशन। और जब मशीन आ जाएगा कितना हो जाएगा? 5,000 into 5 which means 25,000। तो सेविंग इज इट सेम? No sir, no। नहीं, so that means it is
रेलेवेंट। और कितना पोर्शन रेलेवेंट होगा? 15,000 जो डिफरेंशियल है ना, देखिए डिफरेंशियल, यस सर ठीक $3 है? पर यूनिट सो 40 माइनस 25 15,000, सही है? क्लियर है? Yes. ओके, आगे चलें। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेबर सेविंग मशीन है, लेबर को कम करती है और चीजों को कम नहीं करती। सो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 10,000 10,000। डिफरेंशियल है? डिफरेंशियल है? नहीं, सेम है। सो दैट मींस इट इज इररिलेवेंट। इसको भी हटा दें। टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस 120,000, 70 प्लस 40 प्लस 10 120, और यहां पे टोटल कितना आ रहा है? 70 प्लस 25 प्लस 10 105। डिफरेंट है? यस सर ठीक है। रेलेवेंट है? यस कितना पोर्शन? 15,000 15,000। देखो वही 15,000, वही 15,000। सो इट्स द सेम। ऐसा ना हो 15 15 को ऐड कर दें 30 हो गया, नहीं, इट्स द सेम थिंग। यस ओके, आगे चलें। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 200 माइनस 120 इक्वल्स 80, सही है? 200 माइनस 105 95। डिफरेंट है? यस सर कितने से? 15,000 से। सेम 15,000। लेकिन जब मैंने लेबर सेविंग मशीन यूज की तो मेरी 15,000 कॉस्ट कम हो गई। जब मेरी कॉस्ट कम हो गई तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, हाँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा हो गया। बाय हाउ मच? बाय द सेम अमाउंट, ठीक है? तो रेलेवेंट वही 15,000। आगे चलें। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, इसके बाद हम क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 62,000। फिक्स कॉस्ट वुड ऑलवेज रिमेन सेम। लेकिन जब आपने मशीन ली तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई। कौन सी? रेंट। वो कितनी है? 3,000। तो 62 ये होगी और 3 एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 65। यहां पे 62 है, ठीक है? सो नाउ इज इट सेम? नो। डिफरेंस ऑफ 3,000, ये यही 3,000 ये वाला, एंड दिस इज रेलेवेंट 3,000। अब 15,000 का फायदा हो रहा है लेकिन 3,000 का नुकसान हो रहा है, तो नेट क्या हुआ? नेट 12,000। फायदा है नुकसान? फायदा। ठीक, चेक कर लेते हैं। 80 माइनस 62 18, 95 माइनस 65 30, दोनों में फर्क कितना है? 12। वही सेम 12 जो यहां पे आ रहा है। 15 माइनस 3 इक्वल्स टू, ठीक है? गॉट द आइडिया? सो दिस इज हाउ यू विल लुक एट डिफरेंशियल कॉस्ट इन अ बिजनेस सिनेरियो, ठीक है? ये इंतहाई सिंपल सिनेरियो, ठीक? इसके बाद और डिफरेंट सिनेरियोज हैं, वो देखेंगे जो शायद इससे थोड़े से ज्यादा मुश्किल होंगे या थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, या डिफरेंट सिनेरियोज है ना, वो कोई और सिचुएशन होगी। इसमें आपने क्या किया? आपने एक मशीन ली जिसके आने से आपकी एक कॉस्ट कम हो गई, व्हिच वाज योर वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन इसके साथ ही आपकी एक फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो गई, ठीक है, व्हिच इज योर रेंट। तो उसका नेट रिजल्ट क्या आया? नेट रिजल्ट आया 12,000 का फायदा। सो वुड यू गो फॉर द मशीन? यस सर मशीन अच्छा है ना, आपको 12,000 का फायदा देगा, नेट बेनिफिट, ठीक है? दिस इज बेनिफिट, दिस इज कॉस्ट, दिस इज नेट बेनिफिट, सही है? बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट से, नेट बेनिफिट। गॉट द आइडिया क्लास? क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब इसको करने का आसान तरीका क्या है? इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दिस होल सिनेरियो, एक आसान काम करें। Just get this figure 15 and just get this figure 3. 15 minus 3 equals 12. आराम से आंसर निकल आएगा। इतनी बड़ी इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं। What you can do is get net benefit and get the benefit, subtract cost from it, you will get net benefit or cost, जो भी आ गया। बेनिफिट ज्यादा आ गया, कॉस्ट ज्यादा आ गया, पता चल जाएगा। अगर बेनिफिट ज्यादा आ गया, so that means this is a good option, और अगर बेनिफिट कम हुआ, कॉस्ट ज्यादा आ गया, that means don't do it, ठीक है? सही है? क्लियर है? ये क्लियर हो गया? ये देखिए 15 minus 3 equals 12, आसान तरीके से। चले आगे। ओके, using differential approach is desirable for two reasons. अब ये जो डिफरेंशियल अप्रोच हम लोगों ने की ना, ये वाला, इसको डिफरेंशियल अप्रोच कहते हैं, इसको, ये, ठीक है? ये अच्छी क्यों है? वो कह रहे हैं ये दो रीजंस की वजह से अच्छी है।
Only rarely will enough information be available to prepare detailed income statement for both alternatives. अब अगर आपको ये बाकी डेटा गिवन ना होता ये सारा, तो क्या आप ये पूरी इनकम स्टेटमेंट बना सकते? नहीं ना। आपको दो चीजें जो जरूरी चाहिए वो कौन कौन सी थी? एक ये वाली और एक ये वाली। बस आपको दो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो एग्जाम में भी आपने देखना है कि जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको लें, प्लस माइनस जो भी करना है करें, गेट द आंसर। तो इस वजह से इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे इसमें डेटा बहुत सारा होगा, बट यू नीड टू गो फॉर ओनली रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट। रेलेवेंट कॉस्ट और बेनिफिट को लें, आंसर निकालें इन योर डाटा। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि इतने बड़े क्वेश्चन का भी आंसर होगा सिर्फ 2 या 3 लाइंस का, बस। ये अब देखें कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका अगर आंसर देखें सिर्फ 2 लाइंस का, ये डन। ठीक है? यस सर। ठीक है क्लास? लास्ट स्लाइड को तो लास्ट स्लाइड में तो सारा डेटा था ये वाला। देखो ठीक है? और सॉल्यूशन इसका इजी सॉल्यूशन ये है। ठीक है? डिफरेंशियल अप्रोच। सही है? ओके। मिंगलिंग इररिलेवेंट कॉस्ट विद रिलेवेंट कॉस्ट में कॉस्ट कंफ्यूजन। और अगर आप इतनी ज्यादा डेटा देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस वजह से अच्छा ये है कि शॉर्ट फॉर्म में डेटा लिखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। आगे जाएं। ओके, ये डिसीजंस हैं हमारे जो हम लोगों ने करने हैं। ठीक है? ड्रॉपिंग का सेगमेंट, आपके पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बिजनेस सेगमेंट्स। एक नहीं है आपके पास, एक काम ये कर रहे हैं, एक ये है, एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, और इसमें से कोई एक नुकसान कर रहा है, तो क्या करूं? उसको ड्रॉप कर दूं या नहीं? ये इसके बारे में। देन वी हैव आफ्टर दिस वन वी हैव इधर क्या, Then we have make or buy analysis. For example, मैं ये मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करता हूँ और इसका कोई कंपोनेंट है, वो मुझे बाजार से तैयार भी मिल रहा है, तो क्या मुझे वो बाजार से तैयार लेना चाहिए या मैं खुद बनाऊं? मेक और बाय। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म हो गया, सेकंड डिसीजन मेकिंग हो गया जो आप करेंगे। इसके बाद है देन वी हैव स्पेशल ऑर्डर। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर मुझे आ जाए, should I go for it or not? उसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं? 3। and then after this one we have profitable use of constrained resource. आपको पता है कि रिसोर्सेज हमेशा आपके पास लिमिटेड होते हैं, तो फिर उन रिसोर्स को कहां पे इस्तेमाल करूं कि मैं मैक्सिमम बेनिफिट ले सकूं? सो दैट इज द फोर्थ वन। मोस्ट प्रोबब्ली आप लोग कर चुके होंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट का कोई कोर्स किए, बिजनेस मैथमेटिक्स का कोई कोर्स किए, अभी कर रहे हैं, ये उसमें आप लोग कवर कर चुके होंगे, या कवर कर चुके होंगे या अभी कवर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद वी हैव व्हाट, जॉइंट कॉस्ट। ठीक, एंड आई गेस दैट्स इट। ठीक है, तो ये 4-5 किस्म के डिसीजंस हैं जो हम लोगों ने सीखे। ठीक है, आप लोग आज बेसिक्स मिल गया सारा डिसीजन मेकिंग का, और हम लोगों ने 2 किस्म के सिनेरियोज भी कर लिए, एक नॉन बिजनेस था और एक बिजनेस था। अब लेकिन अब इसके बाद कोई 4 किस्म के सिनेरियोज रहते हैं जो हमने सीखे हैं। ठीक, सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर।